सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. ठीक है, तो अपन आज को आगे पढ़ते हैं ना. तो मेंडल ऑल्सो वर्कड विथ अनक्रॉस्ड पी प्लांट that differed in two characters, as is such in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and a round shape and one that had seeds of green color and wrinkled shape. Mendel found that the seeds resulting from the crossing of the parent had yellow colored and round shaped seeds. ठीक है. Here can you tell which of the characters in the pair yellow, green, round, wrinkled shape was dominant? Thus, yellow color was dominant over green and round shape dominant over wrinkled, and the round shape was dominant over wrinkled. These results was identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plants, and between the round and the wrinkled seeded plants, between the round and the yellow seeded plants and the green and the wrinkled seeded plant. ठीक है. Let us use the genotypic symbols capital Y for dominant yellow and color, and small y for recessive green seed color. Capital R for round shaped seeds and small r for wrinkle shaped seeds. ठीक है. The genotype of the parent can then be written as capital R, capital Y, and small r, small y. ठीक है. The cross between the two plants can be written down as in figure 4.7, showing the genotypes of the two parent plants. The gametes capital R, capital Y, and small y unite on fertilization. ठीक है, fertilization के समय पे क्या होंगे? unite होंगे दोनों, है ना, to produce the F1 hybrid, capital R, capital Y, and small y. When Mendel self-hybridized the F1 plants, जब मेंडल ने सेल्फ हाइब्रिडाइज करा किसको? F1 प्लांट्स को, he found that 3/4 of the F2 plants had 3/4 yellow seeds and 1/4 had the green. ठीक है, 3/4 of the F2 plants had yellow seeds and 1/4 had green. ठीक है. The yellow and the green color segregated in a ratio 3:1. Round and wrinkled seed shape was also segregated in a ratio 3:1, just like as a monohybrid cross. So, in a dihybrid cross, we can multiply two monohybrid crosses because the ratio is coming out to be similar as of that of the monohybrid cross. So, that's why we can multiply both the two 3:1 into 3:1. Okay. Then we talk about this diagram. ठीक है, जो डायग्राम है, ये जो पूरा यूनिट स्क्वायर बना के पूरा इसने क्रॉस करवाया, अब इसको देखते हैं अपन. ठीक है, तो ये क्या है? पेरेंटल जनरेशन कैपिटल R, कैपिटल Y. ठीक है, और जो रिसेसिव पेरेंट रिंकल्ड ग्रीन है, स्मॉल r, स्मॉल y. गैमीट्स है इसके कैपिटल R, कैपिटल Y, और रिंकल ग्रीन के हैं स्मॉल y, है ना. और जो राउंड येलो है उसके जो F1 जनरेशन है वो क्या है? कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. और इसकी हमने जब सेल्फिंग करवाई है तो अपने पास 4 तरीके के गैमीट्स इधर बने और 4 तरीके के गैमीट्स इधर बने हैं. ठीक है, तो स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, एंड कैपिटल Y. ओके. और फिर उसके बाद इधर देखो कि इधर भी कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, एंड स्मॉल y. ठीक है, दोनों क्या है? गैमीट्स हैं, है ना. तो एंड में यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो भी लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है. इससे आपके एग्जाम में कई बार आपका PYQ बन चुका है कि व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो फॉर दी डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो इसके अंदर आप क्या बोलेंगे? 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन. तो 9 3 3 1 का आपका बढ़िया सा रेशियो आ जाएगा. ओके, तो ये क्या है? रिजल्ट्स ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस वेयर टू पेरेंट्स डिफर्ड इन 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, सीड कलर एंड सीड शेप. ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी?
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट की, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। इससे पहले अपन ने बात करी थी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, जो कि मेंडल साहब ने दिए थे, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप्स राउंड येलो, wrinkled yellow, round green and wrinkled green appeared in the ratio 9:3:3:1. Such a ratio was observed for several pairs of contrasting for such a pair was observed for several pair of characters that Mendel studied, ठीक है। The ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow, 1 green, 3 round and 1 wrinkled. This derivation can be written as 3 round is to 1 wrinkled, 3 yellow is to 1 green, which is 9 round yellow, 3 wrinkled yellow, 3 round green and 1 wrinkled green. Based upon such observation on dihybrid cross between the plant's offspring in two traits, Mendel proposed a second set of generalization that we call the Mendel's law of independent assortment. The law states that when the two pairs of इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। ये जो लॉ है ये स्टेट करता है कि जब दो पेयर्स ऑफ ट्रेड्स कंबाइन करते हैं हाइब्रिड के अंदर, सेग्रीगेशन होता है वन पेयर ऑफ कैरेक्टर का एज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। सेग्रीगेशन होता है ना। ये जो लॉ है ये स्टेट करता है कि दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब दो पेयर ट्रेड्स के कंबाइन करते हैं एक हाइब्रिड के अंदर, है ना, एक हाइब्रिड के अंदर जब दो पेयर के ट्रेड कंबाइन करते हैं तो सेग्रीगेशन होता है ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। The law states that when two pairs of trait are combined in a hybrid, जब दो पेयर किसके ट्रेट के कंबाइन करते हैं हाइब्रिड के अंदर, तो जो सेग्रीगेशन हो रहा है एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। द प्यूनिट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली used to understand the Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the two pairs of genes during meiosis and the production of eggs and pollen in the F1 capital R small r capital Y small y plants. Consider the segregation of one pair of capital genes capital R and small r. 50% of the gametes have the gene capital R and the other 50% have the gene small r. तो जो स्टेटमेंट दी थी मेंडल साहब ने, इसको वापस से देखेंगे अपन। लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर ऑफ द ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब दो पेयर ऑफ ट्रेड्स कंबाइन करते हैं हाइब्रिड के अंदर, तो सेग्रीगेशन होता है एक पेयर का कैरेक्टर के, वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया से आपको याद रखना है कि जो ये लॉ है स्टेट करता है कि जब दो पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, है ना, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। आपको बहुत ही बढ़िया से इसको समझना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या है कि अभी मैंने आपको ये बता दिया कि जो कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर कितना कंट्रीब्यूशन देगा अपना, 50% कंट्रीब्यूशन देगा, स्मॉल आर भी। तो इट शुड ऑल्सो हैव द एलील कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। The important thing to remember here is that segregation of 50% of capital R and 50% of small r is independent from the segregation of 50% of the capital Y and 50% of the small y. Therefore,
50% of the small r bear gametes has capital Y, and other 50% of the has the small y. Okay. Similarly, 50% of the capital R bear the capital Y, 50% bear the small y. Okay. Thus, there are four genotypes of gametes, four types of pollen, and four types of eggs. The four types are capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y, and small y, each with a frequency of 25% or 1/4 of the total gametes produced. ठीक है, और 1/4 of the total gametes produced. Okay, समझ आई गया होगा आप लोगों को. फिर उसके बाद क्या है, when you write down the four types of eggs and the pollen on the two sides of a Punnett square, it is very easy to derive the composition of the zygotes that give rise to the F2 plant. ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए, है ना, F2 plants का ये that give rise to the F2 plants. Although there are 16 squares, how many different type of genotypes and phenotypes are formed? Note them down in the format given. Can you using the Punnett square data work out the genotypic ratio at the F2 stage and fill the format given? Is the genotypic ratio also 9331? क्या genotypic ratio इसमें भी 9331 है? ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. मैं फिर से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट को वापस बोल रहा हूँ, उसको प्लीज़ दिल और दिमाग में बसा लो अपने. क्या है कि जो लॉ स्टेट करता है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ द कैरेक्टर, व्हेन टू पेयर ऑफ अ ट्रेट combine in a hybrid, segregation of one pair of a character is independent of the other. Segregation of one pair of the character is independent of the other. ठीक है, other pair of character. ठीक है, और आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ कि जो इसका फिनोटिपिक रेशियो है वो कितना आता है, 9331 आता है, और जो इसका जीनोटिपिक रेशियो है वो कितना आता है, 1:1, 2:4:2 एंड 1:1. और आपको ये अच्छे से याद रखना है कि इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो आता है कितना, 1:1, 2:4:2, 1:1, और जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कितना आता है, 9331. ठीक है, और इसमें अब अपन आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ. ठीक है, फिर आ जाएगा अपना लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, और फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक के ऊपर थोड़े थोड़े से पैराग्राफ्स हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, और फिर उसके बाद क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और म्यूटेशन, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. बढ़िया सा चैप्टर है, इसको निपटाते हैं अपन. ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के साथ. ठीक है, Mendel published his work on inheritance of characters in 1865. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है कि मेंडल ने अपने काम को पब्लिश कब करा. मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर in 1865, but for several reasons it remained unrecognized. For till 1900. ठीक है, सेवरल रीजन्स की वजह से क्या रहा, अनरिकोगनाइज रहा 1900s तक. फर्स्टली क्या रीज़न था, सबसे पहला किया अनरिकोगनाइज रहा काम 1865 के बाद, 1900 में काम जाके पब्लिश हुआ. भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एज इट इज़ नाउ. अभी तो आप फ़ोन में डालोगे, व्हाट्सएप चैटिंग कर लोगे, बॉटम पे कॉल कर लोगे, मतलब कॉल करने के बाद और इधर उधर जाने में ट्रेन, बस, फ्लाइट, कितने ज़्यादा साधन हैं अवेलेबल. और उस समय तो कुछ भी नहीं था भाई, बैलगाड़ियाँ चलती थी. ठीक है ना, खत भेजे जाते थे, खत. कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज. हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, है ना, उसका जो वर्क था वो वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया. Secondly, his concept of genes or factors in Mendel's word as a stable and discrete unit that controlled the expression of traits and of the pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in the nature. ठीक है,
तो वो ये एकदम बढ़िया बात लिखी हुई है कि मेंडल्स के वर्ड के अंदर जो ये फैक्टर था एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल्ड with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature. Phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of that time. ठीक है, to many of the biologists of his time. Okay, अच्छे से समझ आ रहा है ना? क्या था कि जो कॉन्सेप्ट था जीन्स का, है ना, और फैक्टर्स का मेंडल्स लॉ के अंदर एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट एंड ऑफ द पेयर ऑफ अलील्स विच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज। मतलब जो उसके साथ वाले थे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। समझे आप लोग? ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, thirdly, Mendel's approach की use of mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. ठीक है, finally, though Mendel's work suggested that factors gene was discrete unit, फाइनली जो मेंडल का वर्क था उसने ये बता दिया था कि जो फैक्टर या फिर जीन है वो क्या है, डिस्क्रीट यूनिट है। Thirdly, Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. Finally, though Mendel's work suggested that factors, genes were discrete units, है ना, factors, gene were discrete units, he could not provide any physical proof for the existence of factors or say what they were made up of, है ना। तो in 1900s, three scientists, De Vries, Carl Correns and von Teschermark, ठीक है, independently rediscovered ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंटली, है ना। इंडिपेंडेंटली इनने ये सब काम करे थे, इंडिपेंडेंटली इनने वापस से मेंडल के आइडिया को रिपब्लिश करा था। ठीक है, independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters. Also, by this time, due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe the cell division. This led to the discovery of structures in the nucleus that appeared to double and divide just before each cell division. These were called as chromosomes. ठीक है, तो 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट आए, कौन कौन, यूगो डिवरीज, है ना, कार्ल कोरेंस एंड वॉन टेशरमार्क, और इनने इंडिपेंडेंटली क्या करा, रीडिस्कवर करा मेंडल के काम को और इनहेरिटेंस कैरेक्टर को। और इस टाइम तक ड्यू टू एडवांसमेंट हो गया था माइक्रोस्कोपी के अंदर, है ना, साइंटिस्ट जो थे वो एबल हो गए थे केयरफुली जो ऑब्जर्व कर पाए थे सेल डिवीजन को, और इससे क्या हुआ था, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी हो गई थी न्यूक्लियस के अंदर, और इस स्ट्रक्चर को एंड में जाके बाद में जाके क्या बोला था, क्रोमोसोम बोला था। ठीक है, कलर्ड बॉडीज as they were visualized by staining, ठीक है, chromosomes were the colored bodies as they were visualized by staining, ठीक है, chromosomes were the colored bodies as they were visualized by staining, ठीक है, chromosomes were the colored bodies as visualized by staining, and just before cell division chromosomes they appeared to as double and divide, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, the chromosome movement during meiosis had been worked out, ठीक है, had been worked out. Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes. ये स्टेटमेंट भी कई बार एग्जामिनेशन के अंदर आ चुकी है कि वॉल्टर सटन ने और थियोडर बोवेरी ने, सटन एंड बोवेरी ने नोट करा था बिहेवियर किसका, क्रोमोसोम्स का, कि पैरेलल है ये क्रोमोसोम्स का बिहेवियर किसके नेचर से, जीन के नेचर से, ठीक है ना। and used the Theodore Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel law, ठीक है, और इन्हें यूज़ करा था chromosomal movement to explain the Mendel's law. ओके, देन उसके बाद क्या है, क्रोमोसोमल मूवमेंट यूज़ करा था उन्होंने मेंडल लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, रिकॉल करो
कि आपने स्टडी करा होगा क्या बिहेवियर क्रोमोसोम का ड्यूरिंग माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस द रिडक्शनल डिवीजन, है ना. द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम्स एज वेल एज द जीन्स अकर इन पेयर. क्रोमोसोम एवं जीन्स दोनों ही किसमें पेयर्स में अकर होते हैं, ठीक है. द टू अलील्स ऑफ अ जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट्स, ठीक है. जो दो अलील्स हैं ऑफ अ जीन पेयर ये लोकेटेड हैं ऑन होमोलॉगस साइट्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है. द टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस साइट्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम. ये G1 स्टेज है, ये G2 स्टेज है, ये मियोसिस 1 की एनाफेज वाली स्टेज है, ये मियोसिस 2 की एनाफेज वाली स्टेज है, ये जर्म सेल्स हैं, ठीक है. Meiosis and germ cell formation in a cell with 4 chromosomes. Can you see how chromosomes segregate when when germ cells are formed? ठीक है, ये G1 है, ये G2 है, ये meiosis 1 एनाफेज, meiosis 2 एनाफेज, germ cells, ठीक है. ये अच्छे से आप लोग देख लेंगे कि ये meiosis 1 का एनाफेज है ना, और ये मियोसिस 2 का एनाफेज है, और ये क्या है जर्म सेल्स हैं. ये इसमें बाइवेलेंट दिखा रखा है मियोसिस 1 के एनाफेज में, ठीक है. ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कलर्ड बॉडीज़ होते हैं. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कलर्ड बॉडीज़ होते हैं जो कि विजुअलाइज होते हैं स्टेनिंग से. 1902 के अंदर क्रोमोसोम मूवमेंट मियोसिस के दौरान वर्कड आउट किया गया था. वॉल्टर सटन ने और थियोडर बोवेरी ने बिहेवियर देखा था क्रोमोसोम्स का पैरेलल है जीन्स के, ठीक है, और यूज़ करा था क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, ये जो दो अलील्स हैं जीन पेयर के लोकेटेड है होमोलॉगस साइट्स के ऊपर होमोलॉगस क्रोमोसोम की. जो दो अलील्स होते हैं जीन पेयर के दे आर लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस साइट्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है. एकदम बढ़िया से याद हो गया होगा, है ना. और 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट आए थे, डिवरीज, कॉरेंस और वॉन टेशरमार्क, है ना, और इंडिपेंडेंटली डिस्कवर कर गए थे मेंडल के रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस, है ना. और बाय दिस टाइम एडवांसमेंट भी हो गया था माइक्रोस्कोपी के अंदर, जिससे क्रोमोसोम्स की भी डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है. फिर उसके बाद ये उनने एक बढ़िया सी टेबल बता रखी है क्रोमोसोम्स और जीन के लिए, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से. कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स, ठीक है. तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो इसमें ए वाला है वो जीन है, और जो बी वाला है वो क्रोमोसोम है, ठीक है. जो ए वाला है वो क्या है आपका जीन है, जो बी वाला है वो क्या है आपका क्रोमोसोम है. सबसे पहले दोनों के लिए एक पहली बात तो सेम है कि ये दोनों ही अकर होते हैं किसके अंदर, पेयर के अंदर, है ना. और ये क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, है ना. और ये क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन. इतना आपको अच्छे से समझ आया कि ये सेग्रीगेट कर रहे हैं टाइम ऑफ फॉर्मेशन के, ठीक है. फिर उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन at the metaphase plate independently of each other. To understand this, compare the chromosome of 4 different colors in the left and the right column. In the left column, possibility 1, orange and the green is segregating together, but in the right column, possibility 2, the orange chromosome is segregating with the red chromosomes, ठीक है. ये possibility 1 है. 1 long orange and short green chromosome and the long yellow and the short red chromosome at the same pole, ठीक है. ये मियोसिस 1 का एनाफेज है, ये मियोसिस 2 का एनाफेज है, ये जर्म सेल है. ये मियोसिस 1 का एनाफेज, मियोसिस 2 का एनाफेज, ये जर्म सेल, ठीक है. फिर सटन एंड बोवेरी ने आर्ग्यू करा था दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर of factors that carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and he called as the chromosomal theory of inheritance. Next बच्चों अपन बात में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.